So welcome in another video of communication skills student. In last lecture we have completed the third unit. So today we start with the unit number 4, which is understanding the specific communication needs. So in that the syllabus main topics are corporate communication is the first topic. Second one, persuasive strategies in business communication. Then third topic is ethics in business communication, and the fourth one is the business communication aids. So these four topics are studied in this fourth unit, which is the understanding specific communication needs. So first we start with the corporate communication. So the question will be asked, what do you mean by corporate communication? So in short it is called as a CC. So in that the first point is, in order to understand the corporate communication, it is necessary to first clear the difference between the corporate identity and image. ठीक है, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो जनरली जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड बिग कंपनीज, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरी कंपनी से किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। So that type of communication between the two companies or between the two organization, then it is called as a corporate communication. ठीक है। So second point will be the corporate identity in terms of cues offered by the organization both internally and externally through the symbols, communication and behavior. So refer this as a corporate mix identity and implies that the corporate personality is a manifested through this mix। ठीक है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, ठीक है। बिहेवियर किस तरह का है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी चीज़ें, या आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे विथ कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्कस होगा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। देन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एज अ सिंबल एंड नॉमेनकल्चर यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट टू द पीपल। ठीक है, मीन्स जो पीपल्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, सो दैट कैन बी यूज एज अ आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस है, ठीक है, तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन बनाया है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। ठीक है, so the next point is identity is defined by the top managers and their advisor. Communication channel are mediated, that is deliver is the most cases of mass media. Non-personal channels like a newspaper and annual reports are there, etc. ठीक है, so identity is defined by the top managers in the organization or in the companies or the advisors, and the communication channels are deliver in most of the cases of mass media। ठीक है, तो मास मीडिया या जो नॉन पर्सनल चैनल्स है, न्यूज़ लेटर्स, ठीक है, या एनुअल रिपोर्ट जो है कंपनीज़ का या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो उसके थ्रू ये जो टॉप मैनेजर्स है या एडवाइज़र्स है, ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन चैनल है लाइक न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़ लेटर्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। Next point is, it is easy to see that the organization that don't realize the distinction between these two concepts by focusing too much on corporate identity externally can find themselves with the problem. So for instance, organization can alternate the employees when they allow their customer to define who they are, forgetting that is the employees that have to live or to speak, and the identity to that perhaps they should be include a major actor here। Okay, so due to the overlapping of internal and external stakeholders, however, they are may no clear
distinction between the two definitions and the employee's impression to corporate the identity are likely to carry over their direct experiences with the organizational identity. ठीक है, तो ये जो corporate communication है that can be help for the different organization or the different companies which are in the same sector. Okay, so in that the employees which are work in the that companies or in organization, they can communicate with the other companies very well by using this communication. So that type of communication is called as a simply corporate communication. So these are the some points regarding the corporate communication. Next point will be the characteristics of corporate communication. So what are the main characteristics which were included in the corporate communication that we have to see in this point. So the following are the characteristics which the corporate communication possesses. So these are first media relation. तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का वो है मीडिया रिलेशन. सो मीडिया रिलेशंस आर वाइटल रोल परफॉर्म इन द this corporate communication. This relation can deliver a huge benefits to the organization. ठीक है, तो जो भी मीडिया चैनल्स है या न्यूज़पेपर है, ठीक है, मीडिया एजेंसीज है, दे हैव अ गुड रिलेशन विद द corporate communication because it will deliver a huge benefit to the organization. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपडेट्स या नई कुछ न्यूज़ वहाँ पे जनरेट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो मीडिया से जो उनका रिलेशन एक अच्छा होना चाहिए क्योंकि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी. सो कंपनीज मस्ट एम्फोसाइज ऑन सुपीरियर मीडिया रिलेशन एंड डेवलप द स्ट्रेटजीज with the media to ensure the message are effectively delivered to the targeted audience. ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडिया के जो रिलेशन है उसका यूज़ करके जो भी टारगेटेड ऑडियंस है या कस्टमर्स है, ठीक है, तो उन तक इफ़ेक्टिव वे से मैसेज जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो उसका मैसेज करेक्टली डिलीवर हो सके टारगेटेड कस्टमर पे या ऑडियंस पे. ठीक है, तो उसके लिए मीडिया का जो रोल है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन है. सो द मैनेजर शुड बी गिवन अ ट्रेनिंग ऑन हाउ मीडिया में ट्रीट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मस्ट हैव द एक्सपर्टाइज इन मैचिंग द क्लाइंट मैसेज टू द राइट मीडिया व्हीकल. ठीक है, तो मैनेजर को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो मीडिया को किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कंपनी में है ऑलरेडी. ठीक है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है मीडिया को, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर का. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इज द मैनेजिंग द मीडिया. सो इन दैट फर्स्ट इज द क्रेडिबिलिटी. सो दैट इज द एबिलिटी टू डील ऑनेस्टी. ओके, सेकंड वन इज द candor, that is ability to acknowledge errors. Third one, clarity, ability to keep it simple. Fourth one is the compassion, ability to listen to other, understanding their position and be polite in responding. Fifth one is the commitment, ability to keep the issue in focus and avoid distraction. ठीक है, तो ये टोटल 5 C's है फॉर इफेक्टिव मीडिया रिलेशन. ठीक है, तो ये जो 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फॉर मैनेजिंग द मीडिया. तो क्रेडिबिलिटी है, मीन्स आप ऑनेस्टी वहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, कैंडोर मीन्स एबिलिटी टू एक्नॉलेज एरर. ठीक है, अगर कोई एरर होता है या कोई फॉल्स न्यूज़ है तो उसे आपने एक्नॉलेज करना चाहिए. ठीक है, क्लैरिटी मीन्स जो मैसेज होगा वो क्लियरली सेंड होना चाहिए. ठीक है, तो डैट इज़ सिंप्लिसिटी उसमें होना चाहिए. कंपैशन मीन्स लिसनिंग द अदर्स. ठीक है, तो
Then next one is the community relation. So community relation may be the consequence for or generous corporate culture in which a relation just happen to be helpful. ठीक है, तो community जो relations है that can be helpful for the organization. So company may have acquired a good reputation because it is always ready to help when asked in different ways through the people, मनी और प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट. ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे एक गुड रेपुटेशन अगर कंपनी एक्वायर करती है, ठीक है, एंड बिकॉज इट ऑलवेज रेडी टू हेल्प. ठीक है, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हेल्प करती है अलग अलग पीपल्स को बाय प्रोवाइडिंग द मनी और प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट. सो दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड रेपुटेशन or acquire a good reputation in a market. So managers at all level understand in advance, that is sanction and approve. So it is a corporate tradition the way that things are done. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स है एट ऑल द लेवल्स अंडरस्टैंड इन एडवांस, तो पहले ही उनको पता होगा कि कितना बजट यहाँ पे सैंक्शन हो रहा है या क्या अप्रूव करना है. ठीक है, वो इक्विपमेंट्स हो, परचेज डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ थिंग्स हो. ठीक है, तो कहाँ कहाँ अप्रूवल देना है और कहाँ पे क्या क्या सैंक्शनिंग करना है, तो ये सब मैनेजर्स को इन एडवांस देखना है. ठीक है, पहले. तो ये कॉर्पोरेट ट्रेडिशन है एक तरह का. ठीक है, सो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन शुड इंश्योर दैट कम्युनिटीज़ वेयर द पीपल लाइव एंड वर्क स्पेशली देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर नॉट स्टेक. ठीक है, तो जो डेली जो वर्क है, ठीक है, एंड डेली जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है बाय द डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, तो उनको हेडेक ना करके जो स्मूथ तरीके से या स्मूथ वे से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइक दैट. So these are the some points regarding the community relations. Next is the employee communication. So it is very essential to manage a space of change in corporate. Companies should develop the strategies to respond to changes. Management, particularly in developing the world, they should effectively convey to change to employees. ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल्स और विद द अदर टीम्स और अदर डिपार्टमेंट. ओके, सो दैट विल रिस्पॉन्स टू द changes. Okay, and particularly developing the world, they should be effectively convey the change to the employees. तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ में एक चेंज आ सकता है by using the communication with the different peoples in the company or in an organization. So that is called as a simply employee communication. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कम्युनिकेशन टूल का एंड सम कॉमन यूज़. ठीक है, टॉप डाउन मैनेजमेंट, बॉटम अप एम्प्लॉयज़. ठीक है, लैटरल मैनेजमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट जो कम्युनिकेशन टूल है एम्प्लॉयज़ पब्लिकेशन, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, सो कीप द एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म अबाउट द बिजनेस इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो पब्लिकेशन है, ठीक है, वो पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, मीन्स जैसे हम फेसबुक पे ऐड देखते हैं, मैगज़ीन है, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिश हुआ है. ठीक है, पेपर से कुछ कंपनीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की मंथली मैगज़ीन वहाँ पे प्रिंट होता है. तो उस मैगज़ीन में जो भी बिज़नेस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सभी कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है डायरेक्टली. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन एम. देन एम्प्लॉय इंट्रानेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ या गाइडलाइंस होंगी, हिस्ट्री, अवार्ड्स, फाउंडर्स, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट. ठीक है, पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग, सेफ्टी, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पे शेयर हो सकती है. या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, तो ये सभी एम्प्लॉय इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा. ठीक है,
third one is the email. So ongoing day to day communication, updates on important issues और changes, crisis communication. ठीक है, तो डेली जो ईमेल सेंड होते हैं विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन और विद इन अ कंपनी, ठीक है, इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो दैट विल बी अ डे टू डे कम्युनिकेशन. सो दैट इज रिलेटेड टू द अपडेट्स ऑन अ इम्पोर्टेंट इशू. जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द written communication. So email is a written communication tool, so that is the email. नेक्स्ट वन इज़ द मेमोज एंड लेटर, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट इज़ थ्रू अ लेटर. एंड एम्प्लॉय एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ पॉलिसी, ओके, और प्रोसीजर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस. तो इसके लिए यहाँ पे मेमोज एंड लेटर का यूज़ होगा इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ में. ठीक है, ऑलरेडी हमारा मेमोज एंड लेटर का टॉपिक डिटेल में हो चुका है लास्ट यूनिट में. तो सेम वे से यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में उसका यूज़ होगा. नेक्स्ट जो है वो आपका लार्ज ग्रुप मीटिंग्स. तो कंपनी विजन, स्टेट ऑफ नेशन एड्रेस, मेजर चेंजेस, ओके, कल्चरल बिल्डिंग. तो इसके लिए लार्ज ग्रुप मीटिंग्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन या विद इन अ कंपनीज हो सकता है. ठीक है, तो ये कॉमन यूजेस है उसके. ठीक है, तो ये अलग अलग आपके कम्युनिकेशन टूल्स है. जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ मीटिंग्स, तो स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स टीम बिल्डिंग के लिए हो सकता है. सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसका प्लानिंग करना है, दैट इज़ वर्क प्लानिंग. स्टेटस अपडेट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, कुछ अगर अपडेट्स है तो उसके लिए एक स्मॉल ग्रुप मीटिंग अरेंज हो सकता है. ठीक है, कंपनी में. अब बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में जनरली जो अपकमिंग इवेंट्स है या न्यू इवेंट्स है, ठीक है, तो उसको अगर उसका इंफॉर्मेशन देना है एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए बुलेटिन बोर्ड. नोटिसेस, अगर कंपनीज़ के कुछ नोटिस है, ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड पे वो डिस्प्ले होगा. प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोग्राम, ठीक है, अगर कोई नया प्रोग्राम अनाउंस हुआ है, ठीक है, तो वो बुलेटिन पे डिस्प्ले कर सकते हैं. सो दैट इज़ द यूज़. सोशल मीडिया, एक ब्रांड एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया का यूज़ हो सकता है. अनाउंसमेंट, ठीक है, या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए विद द कस्टमर्स, तो सोशल मीडिया का यूज़ उसके लिए. ठीक है, लाइक दैट. तो इस तरह से अलग अलग कम्युनिकेशन टूल्स हैं एंड उसके कुछ कॉमन जो यूजेस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं इस टेबल में. ठीक है, so the next is the grapevine. So it is a fast and effective way to disseminate the information about the company happenings and issues, often inaccurate. तो कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, या जो भी इश्यूज़ है या जो भी थिंग्स एक्चुअली हैपन हो रहा है, ठीक है, तो ये ग्रेपवाइन के ज़रिए जो भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो उनको पता चलेगा. दैट इज़ द फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफन इनएक्यूरेट या कुछ गलत चीज़ें भी अगर हो रही कंपनी में विद इन कंपनी, सो दैट कैन बी अ नॉलेजेबल टू द ऑल द एम्प्लॉयज़. Okay, then next one is the video to promote the brand for major organizational initiative, for training, orientation, to celebrate the milestone, okay, such as anniversaries. Okay, तो ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वीडियो के ज़रिए प्रमोशन हो सकता है. जैसे यूट्यूब पे जिस तरह से ब्रांड प्रमोशन होता है, लाइक दैट. ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट या स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उसका एक वीडियो बना के उसके रिगार्डिंग जो टेक्निकलिटीज़ है, ठीक है, एडवांटेजेस, ठीक है, तो कंपैरिजन करके दूसरे ब्रांड के साथ, लाइक दैट. तो इस तरह से एक प्रमोशन यहाँ पे हो सकता है वीडियो के ज़रिए. ठीक है, सो दैट इज़ द कॉमन यूज़. पावर पॉइंट स्लाइड्स आर यूज फॉर ट्रेनिंग, कम्युनिकेट विद द कंपनीज विजन, मिशन, गोल्स. ठीक है, तो उसके लिए जनरली पावर पॉइंट स्लाइड्स का यहाँ पे यूज़ हो सकता है. ठीक है, ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है, लाइक दैट. सो दीज आर द सम कॉमन यूजेस. देन नेक्स्ट इज द वेबिनार्स. वेबिनार इज ऑल्सो यूज टू
न्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, वर्क मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन सेशन, ठीक है। वेबिनार्स में अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ है या कस्टमर से यू कैन ज्वाइन लाइक अ मीटिंग, and in that you can discuss the different programs or the companies or organization information with the employees by using these webinars. Then face to face, okay, this is also one of the type of communication with the employees or with the customer. uh, Displays highlights company or program information, generate the inquiries for more information, feedback, रिक्रूट पर्सनल, ठीक है। तो डिस्प्ले बोर्ड्स का यहाँ पे यूज़ हो सकता है कंपनी के ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए, या कोई अगर नया प्रोग्राम कंपनी में लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, लाइक दैट। सो दीज आर द कम्युनिकेशन टूल्स विथ सम ऑफ इट्स कॉमन यूजेस। नेक्स्ट वन इज़ द रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक सिंपली डिस्प्ले दिया हुआ है कि जो कॉर्पोरेट रेपुटेशन है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द इमोशनल अपील, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, विजन एंड लीडरशिप ऑफ दैट कंपनी, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट किस तरह का है उस कंपनी में, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सभी फैक्टर्स पे आपका जो कंपनी का रेपुटेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट का, सो दैट कैन बी अ डिपेंड। सो कंपनीज रेपुटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट इन टूडेज टाइम। तो आज के तारीख में जो मेन कंपनी का जो रेपुटेशन मार्केट में किस तरह का है, दैट विल बी अ मैटर, ओके। इफ़ द कंपनीज रेपुटेशन इज़ डैमेज, सो इट कैन बी अ wither and die out within a month and destroys the values of shareholder, ठीक है। अगर कंपनी का रेपुटेशन डैमेज होता है मार्केट में, ठीक है, तो मीन्स विद इन अ सम मंथ्स द कंपनी विल डिस्ट्रॉय, ठीक है, एंड द वैल्यूज ऑफ शेयर होल्डर्स will also be destroyed, okay। So like that, so reputation is the main important thing in today's time for the any organization or company. Next one is the corporate positioning, okay। so यहाँ पे एक simply diagram दिया है जहाँ पे corporate positioning दिया है, and that will depend on the different factor, how you present yourself, what you say, who say, ठीक है, then what you have previously so these are the different factors. So in today's times there is a tremendous amount of competition among the organization। तो हमें पता है कि आज के टाइम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज में टफ फाइट है, मीन्स टफ कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज बना रही है तो उसमें कंपटीशन है, ठीक है। सो द कंपटीशन intensifies, the companies have to work hard to differentiate themselves from the other peers, ठीक है। तो कंपटीशन से कंपनी में जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, वो जनरेट होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो दूसरी कंपनी से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या इनका जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, वो किस तरह से बेटर है, ठीक है। तो बेटर जब भी बनेगा जब तक कंपनी में इनोवेशन या हार्डवर्क उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हार्डवर्क कहाँ से आएगा, ड्यू टू द कंपटीशन विद द अदर कंपनीज और पीयर्स, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रैटेजीज इन फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए वो इस पॉइंट में हम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी द गोल सेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जो विजन है, विजन मिशन या गोल है फाइनली, ठीक है, तो उसके अचीवमेंट के लिए कुछ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वन, एंटिसिपेटिंग अदर पीपल्स रिएक्शन। थर्ड वन इज़ द शेपिंग मेमोरी एंड फोर्थ वन इज़ द इवॉल्विंग, ओके। So these are the
strategies for corporate communication. Next one is the providing point of identity, main level orientation, serving as a basis for action. So these are the total 7 strategies for a corporate communication. नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. ओके, तो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन किया है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का. सो द कॉर्पोरेट सिटीजनशिप हैज़ अ बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन एंड एक्शन we take. So we believe corporate citizenship is demonstrated in who we are as a company, or how we conduct the business, and how we take care of our employees, as well as how we interact with the world at large. ठीक है, तो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या है कि आप किस तरह से कंडक्ट या बिहेव कर रहे हैं इन योर बिजनेस. ठीक है, आप किस तरह से आपका एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख रहे हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. ठीक है, किस तरह से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड के साथ. ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्टर्स है दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपली अ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज द CSR. C for corporate, S for social, R for responsibility. ठीक है, so in corporate social responsibility, the rules require for public companies to comprise information on series of topics in their yearly report. ठीक है, तो जो ईयरली रिपोर्ट जनरेट होता है प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज का. ठीक है, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है रिपोर्ट में. ठीक है, तो उसमें एक तो होता है स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़, मोबिलिटी ऑफ स्टाफ, वर्किंग आवर्स, सोशल रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ट्रेनिंग, हेल्थ पॉलिसी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटसोर्सिंग. तो ये सभी चीज़ें के लिए जो रूल्स है रिक्वायर फॉर दिस पब्लिक कंपनीज टू कॉपरेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, इन द ईयरली रिपोर्ट. ठीक है, तो ये सब मेन पॉइंट्स है उसमें. ठीक है, सो दे मस्ट ऑल्सो इलिस्ट्रेट देयर मैनर्स व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट हु आर कंसर्न बाय देयर एक्टिविटीज़ इन देयर कंट्रीज वेयर दे हैव ऑफिसेस. सो दे हैव मस्ट एक्सप्लेन द वेज इन विच द सब कॉन्ट्रैक्टर रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट. ठीक है, तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर्स कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो वो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन जो या एग्रीमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसका किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So according to CSR Asia, CSR is a company's commitment to operate economically, socially and environmentally suitable manner, which list balancing the interest of diverse stakeholder. ठीक है, तो यहाँ पे CSR एशिया जो एक कंपनी है दैट विल कमिटेड ऑपरेटिंग इन इकोनॉमिकली, सोशली एंड एनवायरमेंटली सूटेबल मैनर. ठीक है, तो ये तीनों जो फैक्टर्स इकोनॉमिकली, सोशली एंड एनवायरमेंटली, ठीक है, सूटेबल मैनर से मीन्स एक बैलेंस बना के कंपनी विल वर्क. ओके, सो द रैशनल ऑफ CSR हैज़ बीन articulate in number of ways. In essence, it is about the building a sustainable business which needs a healthy economics, markets and communities. ठीक है, तो जो ये CSR है. ठीक है, सो ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है, बट इट इज़ इसेंशियल अबाउट द बिल्डिंग सस्टेनेबल बिजनेस. ठीक है, जो बिजनेस मीन्स ठीक से वर्क कर सके. ठीक है, तो उसको बिल्ड करने के लिए ऑल्सो हेल्दी इकोनॉमिक्स जो है. ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए मार्केट्स एंड कम्युनिटीज़ में ये हेल्प करेगा.
ठीक है। तो उसके लिए ये CSR जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। Again, the companies have incorporated programs and policies that protect the environment, that are investor friendly, do not harm the consumers and competitors. In short, companies are now equally concerned about their social impact, ठीक है। तो कंपनीज हैव इनकॉर्पोरेटेड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, तो हर कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द कंपनीज एनवायरनमेंट, इसके लिए पॉलिसीज़ बनाया जाता है कंपनीज़ में, ठीक है। सो ये जो पॉलिसीज़ है इन्वेस्टर फ्रेंडली, मीन जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसके रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी वजह से किसी को हार्म, मीन्स कंज्यूमर को और जो कॉम्पिटिटर्स है तीन को, तो इन दोनों को हार्म वहाँ पे नहीं होना चाहिए ड्यू टू दिस पॉलिसीज़, ओके। सो दिस पॉलिसीज़ आर मेंटेन फॉर द गुड एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन अ कंपनी। देन देयर आर मेन रोल्स ऑफ दिस CSR। फर्स्ट इज़ द रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन के जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इफ़ेक्टिव वे से यूज़ किया जाएगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट रोल। शो केयर एंड कंसर्न फॉर द कम्युनिटीज़, तो जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, ठीक है, तो उनका जो केयर एंड उनके रिगार्डिंग जो कंसर्न है, ठीक है, वो यहाँ पे रखा जाएगा CSR में। प्रोटेक्ट एंड सस्टेन द एनवायरनमेंट, जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, ठीक है, सो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड। ऑपरेट इथिकली विद द इंटीग्रिटी, मीन्स सभी जो डिपार्टमेंट या सभी जो छोटी कंपनीज है उनके साथ एज अ टीम वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड अप। ट्रीट द एम्प्लॉयज़ फेयरली एंड इक्वली, तो जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, so all are treated equally. So these are the main roles of this CSR, that is a corporate social responsibility, ठीक है। So the next part is difference between CSR and CC, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड CSR में। सो द कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ CSR, ठीक है। तो जो हमने कॉर्पोरेट सिटीजनशिप अभी देखा डेफिनेशन, ठीक है, तो ये CSR का एक पार्ट है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, तो सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए CSR आर यूज। सो कॉर्पोरेट गिविंग, कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये सब पार्ट्स है CSR में। CSR एंड CC कैन बी यूज एज अ इंटरचेंजेबल टर्म्स स्पेशली इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो CSR एंड CC दोनों भी इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ओके। सो CC कैन बी यूज एज अ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। सो द कंपनी एक्ट एज अ एक्टिव सिटीजन in action of the society, performs the political role with respect to the rights and obligation to organize the things in the society, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो दोनों भी जो है CC एंड CSR बोथ आर इंटरचेंजेबल, मीन्स बोथ आर द नियर अबाउट सेम इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो इट इज़ द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ institution response to an accident, sorry, to an incident that threatens to harm or has harmed your institute's people, structure, ability to operate, valuables and or reputation, ठीक है। सो दैट इज़ द सिंपली डेफिनेशन ऑफ अ क्राइसिस, ओके। तो क्राइसिस जो है वो इंस्टीट्यूट्स में या इंस्टीट्यूट के जो पर्सनस है, पीपल्स है, एम्प्लॉयज़ है, या इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या इंस्टीट्यूट का कोई रेपुटेशन है, ठीक है, तो उसके लिए जो हार्मफुल जो चीज़ें है, ठीक है, तो उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट वहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। सो तो उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, ठीक है।
सो फर्स्ट वन इज़ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो उसमें 3 कंडीशंस है, ठीक है। बिफोर क्राइसिस, ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड आफ्टर हैपनिंग द क्राइसिस, ठीक है। तो किस तरह से बिहेवियर इंस्टीट्यूट में या कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो बिफोर जो क्राइसिस है, असेंबल अ कम्युनिकेशन टीम। तो जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ या अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वी कैन कम्युनिकेट विद देम, ठीक है, बिफोर क्राइसिस एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, आइडेंटिफाई द स्पोकर पर्सन, ठीक है। देन ड्यूरिंग द क्राइसिस, एक्सेस द सिचुएशन, मीन्स क्राइसिस जब भी हैपन होगा, मीन्स एट दैट टाइम जो भी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी में, ठीक है, तो उसका हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेट विद द ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दैट, टेक द अकाउंटेबिलिटी, रीच योर ऑडियंसेस, ठीक है। होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस, ओके। देन थर्ड वन इज़ द आफ्टर क्राइसिस, रिकॉर्ड द लेसन्स लर्न, ठीक है। तो उस क्राइसिस से आपने किस तरह से उसको मैनेज किया, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या सीख मिला, मीन्स कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कि किसकी वजह से क्राइसिस हुआ था या किन चीज़ों की वजह से हुआ था, किस तरह से उसे हैंडल किया गया। तो ये सभी जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस से लर्न होगा, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड रखना है यहाँ पे। मॉनिटर व्हाट इज़ बीइंग सेड, ठीक है, लाइक दैट। तो ये तीनों अलग अलग फैक्टर्स है फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, ओके। The next point is identify and know your stakeholders. So you need to know the internal and external stakeholders that matters in your organization. The employees are considered to be your most important audience, because every employee in a respective and a crisis manager for your organization, whether you want them to be or not, ठीक है। तो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, तो दैट विल बी मैटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मैटर करता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली ऑडियंस है, ठीक है। तो उनको एज अ ऑडियंस आप कंसिडर करना चाहिए कंपनीज ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, बिकॉज जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एंड क्राइसिस मैनेजर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू वांट देम और नॉट, ठीक है। So ultimately all stakeholders will talking about you to other, not on your contact list, okay. So it is up to you to ensure that they receive a message you would like them to repeat elsewhere, okay, like that. So next one is the developing holding statement. So while full message develop must wait the outbreak of actual crisis, so holding statement message designed for use immediately after crisis break can develop in advance to use the wide variety of scenarios in which the organization is perceived. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। As an example of holding a statement by a hotel chain with properties hit by a natural disaster before the organization headquarters has any hard factual information might be, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक कोई रेपुटेड होटल चेन है, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मीन्स अलग अलग जगह उनके सपोज ब्रांचेस है या अलग अलग जगह उनके हर सिटीज़ में होटल्स है। तो एक पूरा चेन है होटल का, ठीक है। तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, तो उसमें जो उनके होटल्स है, ठीक है, तो उनका वहाँ पे नुकसान हुआ है। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंटेड आवर क्राइसिस रिस्पॉन्स प्लान, सो विच प्लेसेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर गेस्ट एंड स्टाफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी मीन्स यहाँ पे क्राइसिस रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, ठीक है।
तो जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को देना चाहिए, ठीक है। जो भी गेस्ट होटल्स में या स्टाफ वहाँ पे वर्क कर रहा है होटल में, ठीक है, सो उनके रिलेटेड जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जांपल दैट इज़ डेवलपिंग द होल्डिंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट विल बी द बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी क्या कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस रेफर टू दो स्टेप्स दैट आर नेसेसरी टू रिस्टोर योर इंस्टीट्यूशन टू अ नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी, उसका नाम ही कंटिन्यूटी मीन्स अगर आपका जो बिजनेस है या इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ना उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए मीन्स पहले जैसा वर्क करने के लिए लाइक अ नॉर्मल फंक्शनिंग, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इंस्टीट्यूट में लेना होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द बिजनेस कंटिन्यूटी। सो इन अदर वर्ड्स, इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स मस्ट बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लानिंग, ओके। तो जो इफ़ेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, तो उसका एक इफ़ेक्टिव प्लान एक मेन पार्ट है, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के, दैट इंक्लूडेड कुछ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज दिए सिंपली बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। सबसे फर्स्ट है जो है प्रिवेंटेशन, सेकंड वन इज़ द रिस्पॉन्स, थर्ड रिजम्पशन, fourth is recovery, and fifth one is the restoration. So these are the 5 strategies that can be included in business continuity planning. So the prevention that concentrate on the reducing the probability of disaster happening. तो जो भी disaster कंपनी में हैपन होगा या इंस्टीट्यूट में हैपन होगा, तो उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है, तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए। सो दैट इज़ द कंसर्न। सेकंड वन इज़ द रिस्पॉन्स। सो इन द रिएक्शन व्हेन द इवेंट्स ऑकर, तो जब भी इवेंट्स या डिज़ास्टर कुछ ऑकर होगा, ठीक है, सो इट कुड लीड टू फर्दर डैमेज, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंपनीज में डैमेज होंगे, ठीक है, तो regarding that we have to respond correctly or react with that situation, okay. So that is the response. Resumption involves the resuming only the time sensitive business process, either immediately after the interruption or after the declare mean time between the failure, so all the operates are not fully recovered. Fourth one is the recovery, ठीक है, तो address the startup of less time sensitive process. So the time duration of the naturally depends on the time taken for resumption, that is a time sensitive function, okay. So means जो भी डिज़ास्टर या जो भी क्राइसिस या इंस्टीट्यूट में जनरेट होगा, ठीक है, तो उससे किस तरह से रिकवर किया जाए, ठीक है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम, okay. So it is a time sensitive process, that's why then fifth one is the restoration, ठीक है, so it is the process of repairing and restoring the primary site. तो ड्यू टू द क्राइसिस जो भी वहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है, तो उसको किस तरह से रिकवर करके उसके बाद रिस्टोरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल फंक्शनिंग कराना है बिजनेस को कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए रिपेयरिंग एंड रिस्टोरेशन होगा जहाँ पे भी नुकसान हुआ है प्राइमरी साइट का, ओके। सो दैट इज़ द फाइनल स्टेप इन द बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।